Hello students, hope you all are fit and fine and safe at home. I, Dr. Kulwinder Kaur, welcome you all to my YouTube channel Sankalp Career Point. So I'm back again with a new video today. Today I'm creating a video on the topic fundamentals of banking, and this video is going to be useful to all the students who are pursuing BCom, BBA or MBA course, or who are actually going to appear in the bank's competitive exam. So let's get started. First of all, I'm going to talk to you people about the very basic fundamental, the most fundamental question of banking concept, that is what actually a bank is. So let's begin. A bank is a financial institution or a financial intermediary which accepts deposits from the public and then uses such deposits for the purpose of lending to the borrowers. Now, what we need to understand over here, bank lends such borrowings either directly or through the capital markets. Now, your question could be, why do we call the bank as a financial intermediary? Because banks act as a mediator. Banks establish a link between different kind of customers. Banks are those institutions that connect the customers who have capital surplus and those customers who have capital deficiency. So we understood one thing very clearly. We call a bank as a financial intermediary because they act as a mediator. They actually establish a link or a contact between those customers who have capital surpluses and those customers who have capital deficiencies. Let us also understand, how does Banking Regulation Act 1949 define a bank as? According to the section 5B of Banking Regulation Act, banking is acceptance of the deposits of money from the public which is used for the purpose of lending or for the purpose of investment. So here one thing we understand very clearly. Banks have a very crucial role in accepting the deposits from the public, and then they use such deposits either for the purpose of investment or for the purpose of lending to the borrowers. Such deposits are, first of all, we need to understand, they are repayable on demand. Whenever the customer is going to demand, such deposits are repayable, and such deposits are repayable either by check, draft or a pay order. Chalo, moving ahead. Now, one thing we also understand, banking sector is a very strong backbone of the modern business. The development of any country mainly depends upon how strong the banking system of that country is. So we actually need to understand some basic features of the bank. Let's get started with the first feature. Bank is a financial institutions which deals with the money of other people. That is, it deals with the money of all the depositors. That's one thing. Second, any individual or a company or a firm can act as a bank. That means एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन भी एज अ बैंक एक्ट कर सकता है, एक कंपनी भी एक बैंक फॉर्म कर सकती है और कोई एक फर्म भी एज अ बैंक एक्ट कर सकती है. सो a firm also can be a bank, a company can also be a bank, or an individual can also be a bank. The moment we say a banking company, means a company which is formed for the purpose of performing the job of a banking business of banking, that is banking company. Moving ahead, we also understand one thing very clearly. Bank play a very crucial role in providing easy payments and easy withdrawal facilities. Whatever money we deposit with the banks, that money can be withdrawn very easily, and the payments can also be made very easily with the help of checks and drafts. Not only that, banks have a very important and a crucial role in the circulation of money. Banks का मेन काम ही है इकोनॉमी में, पूरी सोसाइटी में, पूरी इकोनॉमी में मनी को सर्कुलेट करना. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बैंक. मूविंग अहेड, banks are responsible for mobilizing the small savings of
of the public. छोटे छोटे हाउस होल्ड्स की छोटी छोटी सेविंग्स को मोबिलाइज करना और जिनके पास आइडल सेविंग्स है उन सारी सेविंग्स को मोबिलाइज करना and then using such deposits for the purpose of production, for productive purposes, that is also the role of a bank. तो बैंक करता क्या है, बहुत सारी आइडल सेविंग्स, बहुत सारी स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, लोगों से लेता है, कंबाइन करता है and then uses such savings for the purpose of production or for productive purposes. Bank also has an crucial and an important role in providing a very comfortable, a convenient as well as economical means of payment. I stress on economical means of payment. बैंक इस बात का भी ध्यान रखता है कि अभी आपको कोई पेमेंट करनी है तो दैट पेमेंट कैन बी मेड एट अ वेरी नॉमिनल और एट अ वेरी चीप कॉस्ट. तो बैंक्स आपको दोनों फैसिलिटीज देता है, convenient payments as well as very economical payments also. Moving ahead with the next slide. Now, once I have explained you what a bank is, हमने बैंक क्या है समझ लिया, in general बैंक के general features समझ लिए. We also need to have an understanding how banking originated in India. Banking का origin India में हुआ कब? So let us understand. Banking in India originated in the last decade of 18th century. When Bank of Hindustan, this was the first bank that was established in India in 1770. But Bank of Hindustan 1770 में established जरूर हुआ, लेकिन 1829 में the bank got liquidated. उसके बाद the General Bank of India was the second bank which was established in 1706. Again, this bank also failed in 1791. Both of these banks, Bank of Hindustan and General Bank of India, ये दोनों ही बैंक अब डिफंक्ट है, डिफंक्शनल है. अब ये दोनों ही बैंक जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक एंड जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज द सेकंड बैंक. Both of the banks have now become defunctional. They don't exist right now. At the same time, जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री का ओरिजिन समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI आज की डेट में इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट बैंक which is still in existence in India. This bank originated in the Bank of Calcutta in 1806. ये SBI जो आज भी अभी एग्जिस्टेंस में है बैंक, ये बैंक ओरिजिनेट हुआ था 1806 में, 1806 में in the Bank of Calcutta, and it was actually at that time named as Bank of Bengal. Now one thing which I want you people to very clearly understand, बैंक ऑफ बंगाल है क्या. जिस समय SBI को 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया था, उस समय SBI was not named as Bank of SBI, it was actually named as Bank of Bengal. तो बैंक ऑफ बंगाल क्या था? One of the 3 presidency banks. What I want you people to understand, ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के टाइम 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स इस्टेब्लिश किए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, all the 3 presidency banks, they were established under a special charter under the East India Company, right? चलो, moving ahead with the next slide. Now, for many years, बहुत सालों तक प्रेसिडेंसी बैंक्स और जितने भी उनके सक्सेसर बैंक्स थे, they were acting as a semi central banks. तो ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, ये प्रेसिडेंसी बैंक्स और जिनके आगे इनके सक्सेसर बैंक थे, they actually used to perform many important functions of central bank also, semi central bank also. ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स मर्ज कर दिए गए थे 1921 में. और जब ब्रिटिशर्स ने इन तीनों बैंक्स को 1921 में मर्ज किया, तब जाके एक बैंक इसने क्रिएट किया था which was Imperial Bank of India, and this Imperial Bank of India
became State Bank of India in 1955. इसी इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था. अब अपने को जब हम ओरिजिन की बात करें, व्हेन वी आर डिस्कसिंग दी बैंकिंग ओरिजिन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इनिशियल जो बैंक्स इंडिया में डेवलप हुए थे, दे वर डेवलप्ड एज ट्रेडर बैंक्स, जिनका मेन काम सिर्फ एक ही काम था. देयर मेन फोकस वाज ओनली फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग ऑफ ऑल दी ट्रेड. तो वो मेनली फोकस फाइनेंस पे, ट्रेड के फाइनेंस पे, ट्रेड की एक्टिविटीज को फाइनेंस करने पे ही फोकस करते थे. बट लेट अस कंपेयर नाउ, इफ वी कंपेयर टू दी रिसेंट टाइम्स, अगर हम अभी की बात करें तो अभी की टाइम पे बैंकिंग सिस्टम का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. बिकॉज नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दी फॉरेन प्लेयर्स एंड दी प्राइवेट प्लेयर्स. अभी जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं या फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है. और आज की डेट में जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने इन प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट बैंक और फॉरेन प्लेयर्स या फॉरेन बैंक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल को रिकॉग्नाइज किया है. एंड एज अ रिजल्ट द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, जो कॉम्पिटिशन का सिनेरियो है बैंकिंग इंडस्ट्री का, दैट हैज कम्प्लीटली चेंज. चलो, विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू. ये तो अपने origin, थोड़ा सा बेसिक origin मैंने अभी डिस्कस किया. आई डिड नॉट डिस्कस इन डिटेल. आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू हैव एन अंडरस्टैंड हाउ डिड दी बैंकिंग इंडस्ट्री इवॉल्व ओवर द ईयर्स. इतने सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री एक्चुअली इंडिया में इवॉल्व कैसे हुई, दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड. सो जब हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो द एंटायर पीरियड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री has been actually divided into 4 parts: phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. Now I'll be discussing each phase with you people. Phase 1 is pre-nationalization period. Pre-nationalization period means the period before 1969. अब ये before 1969 क्या है, पहले एक चीज़ ये समझेंगे. 1969 is the year in which 14 banks were nationalized. 1969 वो साल है जब 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था. तो उससे पहले का जितना भी पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड और इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड टिल 1969, द एंटायर पीरियड इज कॉल्ड एज प्री नेशनलाइजेशन पीरियड. आई रिपीट, इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम, यानी कि 1947 से पहले का टाइम जो ब्रिटिश रूल का टाइम था, और 1947 से लेके 1969 तक का टाइम, ये जो पूरा एरा है, ये जो पूरा पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज प्री नेशनलाइजेशन पीरियड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस विद यू कि इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री की क्या डेवलपमेंट थी इंडिया में. सबसे पहले, एज आई हैड डिस्कस विद यू जस्ट नाउ, कि ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के अंडर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बना दिए थे. और उन 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज कर दिया था 1921 में, और 1921 में मर्ज करके उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया था. और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1955 में इट वाज नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मोरओवर, ये वो पीरियड था जब एक नया कॉन्सेप्ट आया, जब फॉरेनर्स ने, इंग्लैंड से एक नया कॉन्सेप्ट आया that banking industry can be developed as a joint stock company. तब एक ऐसी सोच आई कि बैंक्स को भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह इस्टेब्लिश किया जा सकता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह फॉर्म किया जा सकता है. तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज वर फॉर्म. नॉट ओनली दैट, एक ये भी कॉन्सेप्ट आया दैट नाउ द बैंकिंग इंडस्ट्री नीड्स टू बी डेवलप्ड. बैंकिंग इंडस्ट्री को अब बहुत ग्रो कराना है, बहुत डेवलप कराना है. और बैंकिंग इंडस्ट्री तभी ग्रो कर पाएगी, तभी डेवलप कर पाएगी जब द बैंक इज गोइंग टू हैव मोर एंड मोर ब्रांचेस. सो द कॉन्सेप्ट वाज फॉर्म कि वेयर द बैंक शुड हैव more and more branches. This is what we are talking of the pre-nationalization era, that is first phase. Let me talk to you people about the second phase, that is era of nationalization. 1969 के बाद का टाइम, जिस समय हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था. Now let us understand
1969 के बाद का पीरियड वाज व्हेन देयर वाज टू मच एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक ट्रेड डेवलपमेंट, जहाँ ज़्यादा फोकस इस बात पर था कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रेड डेवलप हो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। तो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए बहुत सारे एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम्स डेवलप किए गए। क्रेडिट प्रोग्राम्स डेवलप करने का मतलब है where different kind of loans and different kind of credits were given for the industrial development, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जल्दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जल्दी हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल क्रेडिट प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड। नॉट ओनली दैट, नेशनलाइजेशन पीरियड में, एरा ऑफ नेशनलाइजेशन में, वन मोर कॉन्सेप्ट केम इन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक बैंक्स। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, अभी जितने भी बैंक्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स, लॉट ऑफ बैंक्स आर जॉइंट स्टॉक बैंक्स। तो पहले समझो जॉइंट स्टॉक बैंक्स। जॉइंट स्टॉक बैंक्स मतलब वो बैंक्स जिसमें पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप भी है, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप भी है और फॉरेन बैंक्स की ओनरशिप भी है। प्राइवेट बैंक्स की भी, पब्लिक बैंक्स की भी और फॉरेन बैंक्स की भी। सो फेज टू नेशनलाइजेशन एरा वाज द पीरियड जिस समय कॉन्सेप्ट आया था जॉइंट स्टॉक बैंक्स का, एंड वो एक टाइम था व्हेन द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वाज लेड। तब एक कॉन्सेप्ट मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का डेवलप हुआ। कमिंग टू द फेज थ्री, फेज थ्री मीन्स नाउ आई एम टॉकिंग टू द पीरियड ऑफ व्हेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, जिस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ द एरा ऑफ 1991। बेटा ये वो पीरियड है जब बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स और बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इफ यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर इन द स्लाइड, दिस इज द एरिया ऑफ पार्शियल लिबरलाइजेशन, क्योंकि 1991 में भी हमने बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन को हर सेक्टर में पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया था। So phase 3 is again era of partial liberalization, whereas phase 4 is the era of increased liberalization. So let us understand phase 3 में बैंकिंग इंडस्ट्री का सिनेरियो क्या था, बैंकिंग इंडस्ट्री कितनी डेवलप हुई। ये phase 3 was the period, ये वो टाइम था जब बैंकिंग रेगुलेशंस में एक बहुत ड्रास्टिक, बहुत मेजर चेंजेस लेकर आए गए। सारे बैंकिंग रेगुलेशंस चेंज कर दिए गए क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशंस को लिबरलाइज कर दिया गया, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया गया। ये वो टाइम था जब सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस मतलब लीगल कंप्लायंसेस, ये वो टाइम था जब सारी स्टैट्यूटरी या लीगल कंप्लायंसेस को बहुत ज़्यादा इजी किया गया। रीज़न, Indian government wanted that the banking industry should grow more and more, that the banking industry should develop to such an extent that it should now become international. So all these statutory compliances were made very convenient and easy. Not only this, सबसे important change जो इस phase में, phase 3 में आया, that was we had lot of private sector players who came into the picture. बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हो गई थी इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होने की वजह से, प्राइवेट सेक्टर जब आ गया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, उससे पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। रीज़न, वी ऑल अंडरस्टैंड private sector is any day very efficient compared to public sector. So जैसे ही बहुत सारे private players इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आए, एंट्री हुई, उसके वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। नाउ टॉकिंग ऑफ द फेज 4, पीरियड ऑफ इंक्रीज लिबरलाइजेशन, दिस वाज द पीरियड जहां हमने बहुत ज़्यादा, बहुत एरियाज में, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में और बहुत सारे एरियाज में बहुत हद तक लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था। नाउ हियर द एफडीआई सीलिंग मतलब एफडीआई की लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीलिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट, विच वॉज 49% बिफोर। पहले वो लिमिट कितनी थी? 49%, और फिर वो 49% से बढ़ा के
74% कर दी गई. दैट मीन्स नाउ इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली वांटेड एफडीआई सीलिंग या एफडीआई लिमिट 49% से 74% बढ़ाने का मकसद क्या था कि नाउ मोर एंड मोर public more and more foreign banks should come into the Indian banking system, should join the Indian banking system. सिर्फ एफडी सीलिंग चेंज नहीं की गई, आप क्लियरली देखेंगे रोड मैप भी लगाया गया किस तरह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम में फॉरेन बैंक्स को किस तरह से इंक्लूड किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से हम उनको इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड कर पाए, उसके लिए पूरा रोड मैप पूरी प्लानिंग की गई थी. नॉट ओनली दिस, इंडियन गवर्नमेंट एक और चीज़ चाहती थी, इट वांटेड द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री टू डेवलप. इंडियन गवर्नमेंट का मकसद था कि पूरा इंडियन बैंकिंग सेक्टर, पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रो करे, बहुत ज़्यादा डेवलप करे. उसके लिए गवर्नमेंट ने ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया. ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरलाइज करने का मतलब ये हुआ, नाउ द लाइसेंस फॉर द न्यू ब्रांच वाज अवेलेबल वेरी इजीली. बहुत आसानी से नई ब्रांच के लिए लाइसेंस मिलने लग गया, जिससे नंबर ऑफ ब्रांचेस, हर बैंक की नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती चली गई और बैंक्स और ज़्यादा डेवलप होते चले गए. नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड. अब इतना बात करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर. आई गेस ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, in the past few years there has been a very drastic change in the Indian banking system, right? I am going to discuss the current structure of the Indian banking system, but as of now उससे पहले जो structure हमारा चल रहा था Indian banking system में, that I am going to discuss. So first of all I am going to talk to you people what are scheduled banks. All those banks which are included in the second list or the second schedule of the RBI Act 1934, all those banks are called as scheduled banks. I'll repeat this once again. जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो RBI Act 1934 के सेकेंड लिस्ट में आते हैं या सेकेंड स्केड्यूल में आते हैं, वो सारे बैंक स्केड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं. ये जो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और दे कुड बी स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स. राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज टू वन बाय वन. पहले हम स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे, समझेंगे, and then I am going to talk about scheduled cooperative banks. To begin with, let us understand, ये जो scheduled commercial banks हैं, they had been divided into these 5 different groups. ये इन 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, इनका ये पुराना स्ट्रक्चर था. scheduled commercial banks इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज में, इन 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप, कि कौन सा बैंक किसकी ओनरशिप है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशंस. ये 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? एसबीआई एंड एसबीआई के सारे एसोसिएट्स, ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स, ऑल द आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स, ऑल द फॉरेन कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल द प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स. सो यू कैन क्लियरली सी आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर ऑल्सो इन 3 पार्ट्स, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक कमर्शियल बैंक्स. तो ये 5 ग्रुप्स थे जिनमें हमने सारे के सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को डिवाइड कर दिया. वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस दीज इन फर्दर. आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये जितने आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं ना, इन नेशनलाइज्ड बैंक्स में मेजर इक्विटी होल्डिंग किसके पास रहती है? गवर्नमेंट के पास. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेजर इक्विटी होल्डिंग किसके पास रहती है? आरबीआई के पास. और जितने भी एसबीआई के एसोसिएट्स हैं उनकी मेजर इक्विटी होल्डिंग किसके पास रहती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली. अगेन व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली, एसबीआई और एसबीआई के जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और जितने भी आरआरबीज हैं, ये 3 कमर्शियल बैंक्स की वो कैटेगरीज हैं which are constituted under a special act in the parliament. I'll repeat this once again. SBI बैंक और SBI के जितने भी एसोसिएट्स हैं,
ये एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में इनको एनेबल करने के लिए, इनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया। रीजनल रूरल बैंक को भी एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया। सिमिलरली नेशनलाइज्ड बैंक्स को एग्जिस्टेंस लाने में के लिए भी पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया। नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, एसबीआई के जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये वो बैंक्स हैं जिनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट्स पास किए जाते हैं, देन ओनली दीज बैंक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड एज अ बैंकिंग कंपनी। वो एक बैंकिंग कंपनी की तरह फॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए दे आर अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, उसके अंडर सारे प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स आते हैं। आई विल जस्ट मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जितने भी बैंक्स हैं ना, एसबीआई के एसोसिएट्स, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, आपके आरआरबीज हैं, इन सबको हम एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं, दे आर स्टेट ओन्ड बैंक्स। स्टेट ओन्ड बोलो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलो, दे आर स्टेट ओन्ड बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट? एंड understand one thing very very clearly, the public sector banks are the backbone of the Indian financial system. Public sector banks Indian financial system का एक बहुत बहुत strong हिस्सा है। चलो, now I'm going to discuss in a very short about the regional rural banks। थोड़ा सा एक brief में समझते हैं regional rural banks। सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स वो सेटअप इन 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स को एग्जिस्टेंस में लाया गया, मेनली रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो रीजनल रूरल बैंक्स की एग्जिस्टेंस का पर्पस ही है रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना। और रूरल इकोनॉमी को ये कैसे डेवलप करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज इन ऑल दी रूरल एरियाज। तो रीजनल रूरल बैंक्स रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और बैंकिंग सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करवा के दे आर एबल टू डेवलप दी रूरल इकोनॉमी। इसीलिए वी कॉल देम रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक। आरआरबीज को हम क्या बोलते हैं, रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक्स। रिमेंबर वन मोर थिंग, आरआरबीज आर स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब आरआरबीज को की पूरी स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट से आती है। आरआरबीज की सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? एंड दे आर रीजनली बेस्ड। हर रीजन के लिए हम अलग अलग आरआरबीज बनाते हैं, इसीलिए दे आर नेम्ड एज रीजनल रूरल बैंक। हर एक रीजन के लिए हम अलग अलग रूरल बैंक्स डेवलप करते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, रीजनल रूरल बैंक्स का पूरा फोकस सिर्फ रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है, और क्योंकि उनका मेन फोकस रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक। मूविंग अहेड, नाउ वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, मैंने भी आपसे बात की थी ना कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में या सेकेंड लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, वो सारे बैंक शेड्यूल बैंक्स कहलाते हैं। द क्वेश्चन अराइजेज कि सेकेंड लिस्ट में कौन कौन से बैंक आ सकते हैं, सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से बैंक आ सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। So we are going to talk about that eligibility criteria. Now all those banks, वो ऐसे जितने भी बैंक हैं जिनकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व, जिनकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व मिलाकर कम से कम 0.5 मिलियन है, ऐसे सारे बैंक्स आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल या सेकेंड लिस्ट में इंक्लूड हो सकते हैं। आई रिपीट दिस वंस अगेन, वो सारे बैंक्स जिनकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व मिलाकर एटलीस्ट मिनिमम 0.5 मिलियन है, और जो आरबीआई को ये सेटिस्फाई कर दे कि दे आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर के ही बेनिफिट के लिए, कस्टमर के इंटरेस्ट में काम करते हैं, ये ऐसे सारे बैंक आरबीआई एक्ट के सेकेंड लिस्ट या सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड होते हैं। एज वी हैड डिस्कस्ड बिफोर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्केड्यूल्ड बैंक्स है ना बेटा, स्केड्यूल्ड बैंक्स फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और स्केड्यूल्ड
कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अभी तक मैंने आपसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू पीपल अबाउट स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ एक चीज़ और क्लियरली समझना, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक में अगर एक बहुत मेजर डिफरेंस समझना हो तो पहले तो आप ये समझना दोनों के होल्डिंग पैटर्न में डिफरेंस है। होल्डिंग पैटर्न मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का अलग है और शेयर होल्डिंग पैटर्न कोऑपरेटिव बैंक्स का अलग है। आई रिपीट वंस अगेन, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में का होल्डिंग पैटर्न अलग है, शेयर होल्डर्स का होल्डिंग पैटर्न, एंड स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स का स्केड्यूल्ड शेयर होल्डर्स होल्डिंग पैटर्न अलग है। मोरओवर जितने भी स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं होते। स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर होते हैं। आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो जब हम स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं ना, स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हम थोड़ा सा और समझने के लिए वी अंडरस्टैंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अंडरस्टूड है? जो स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव्स अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं दे आर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं दे आर रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। एंड ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है ना दे वर्क एट 3 टियर, ये 3 टियर लेवल पर काम करते हैं सारे कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। आई रिपीट दिस वंस अगेन, जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स 3 टियर लेवल पर काम करते हैं, प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। Now at the end of this video I am going to talk to you people about non-scheduled banks। ये non-scheduled banks कौन से होते हैं? Non-scheduled banks मतलब वो banks जिनको हम local area banks भी बोलते हैं। Non-scheduled banks वो banks हैं जो RBI Act की सेकेंड लिस्ट या सेकेंड शेड्यूल में नहीं आते। जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो आरबीआई की सेकेंड लिस्ट या सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होते वो सारे बैंक्स नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जिनको हम लोकल एरिया बैंक्स यानी कि LABs भी बोलते हैं। व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, मार्च 2009 तक इंडिया में सिर्फ 4 ऐसे लोकल एरिया बैंक्स थे जो ऑपरेशनल थे, जो एग्जिस्टेंस में थे। आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड नाउ। A little bit what I want you people to understand about local area banks। local area banks वो banks थे जो existence में आए under a special scheme which was introduced by the government of India in 1996। इंडियन गवर्नमेंट ने 1996 में एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की और वो स्कीम लॉन्च करने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्रिएट करे जो लोकल लेवल पर काम करे, जो स्टेट लेवल वर्क नहीं करे, जो पैन इंडिया ऑपरेट नहीं करे, जो रीजनल लेवल ऑपरेट नहीं करे, जो सिर्फ लोकल लेवल पर ऑपरेट करने के लिए, जो जिनका जुरिस्डिक्शन होगा सिर्फ 3 एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट, 3 साथ के डिस्ट्रिक्ट, 3 आसपास के जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, वो सारे बैंक जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल या सेकेंड लिस्ट में नहीं आते वो लोकल एरिया बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। और ये वो बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कीम के अंडर एग्जिस्टेंस में आए। वो स्कीम जो 1996 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी ताकि कुछ लोकल लेवल के प्राइवेट बैंक्स को एग्जिस्टेंस में लाया जा सके जिनकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ 3 एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कोई भी लोकल एरिया बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स में दे सकता है, उसके अलावा उनको सर्विसेज देना अलाउड नहीं है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट, लोकल एरिया बैंक का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। लोकल एरिया बैंक्स वो बैंक्स हैं जो रूरल एरिया से, सेमी अर्बन एरिया से
फंड्स मोबिलाइज करते हैं और वो फंड्स वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होते हैं फॉर एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली स्टार्टिंग में इंडियन गवर्नमेंट ने 6 लोकल एरिया बैंक्स को लाइसेंस दिया था। 6 लोकल एरिया बैंक थे जिनको लाइसेंस दिया था, लेकिन इसमें से एक लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर दिया गया because the operations of that bank were very very irregular. It was not operating regularly, and moreover there was one another local area bank जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ amalgamate कर दिया गया क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा weak थी. So as of now we have only 4 local area banks which are operational. So that is all in this video. I would actually be covering the entire syllabus of BCom, MCom and BBA. So I would be coming with a series of videos on banking so that I'm able to cover the entire syllabus of banking. Thank you.